اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بندہ گناہگار خادم دارالحسان علم دین اپنے شیخ کامل حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی بانی دارالحسان شاہ ولایت قدس سر العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآتراتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا میں نے آج رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو پرسلات پر سے گزرتے دیکھا ہے، کبھی وہ لٹکتا تھا کبھی وہ گھسٹتا تھا، تو اس کے پاس درود آیا جو وہ مجھ پر پڑھا کرتا تھا، اس نے اس کو پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر وہ صحیح سالم پرسلات پر سے گزر گیا۔ اللہ کا نام تو ہے ہی بلند، اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر۔ جس نے اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا وہ بلند ہوا ماشاءاللہ۔ اپنے دل کے دفتر میں صرف دو ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ ملازمت جائے پاویں 100 بار جائے پر والدین کی خدمت کبھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تیرا بہترین ورد درود تیرے حال کی دعا ہے، نہ رد ہوتا ہے نہ نظر انداز۔ ماشاءاللہ، وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں ترا سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سہولت سے نجات دلا کر اس کو غلبہ عطا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں مریم کی پاک دامنی کی گواہی دلا سکتا ہے، کیا ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، پھر کرتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے کہنے پر نہیں چلتے، اس کے سب سے پیارے محبوب شغل کو نہیں اپناتے۔ وہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ وہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہم رکھنے نکالتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے صدقے خطائیں معاف کراتے رہے، ہم وسیلہ کی حیثیت کے ہی قائل نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اس کے سب سے پیارے محبوب شغل کو اپنائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، الفت، محبت، عشق میں سرسار ہو جائیں، آپ کے ہر حکم پر چلنے کو تیار ہو جائیں، سب دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں، کائنات کی ہر چیز پہ مختار ہو جائیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتا ہے، ہم بھی کریں، اب بھی کریں، تب بھی کریں، ہمیشہ کریں، سدا کریں، یہاں کریں، وہاں کریں، ہر جا کریں۔ اللہ آسمان پر کرتا ہے، ہم زمین پر کریں، اتنا کریں، اتنا کریں، اس حد تک کریں کہ زمین کی گہرائیاں، فضا کی پہنائیاں، آسمان کی بلندیاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گونج اٹھے، شیاطین کو پناہ نہ ملے، بلاؤں کو جگہ نہ ملے، سکون ہو جائے،
आराम हो जाए, हर सू कू बकू जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे गड़ जाए, या हयो या कयूम। अल्लाह ने हमें सब उम्मतों में से खैरा उम्मत यानी चुनी हुई उम्मत कहकर पुकारा है, वो उम्मत जिसे हर किस्म के खैर से नवाजा गया है। लेकिन आज जो हमारी बेकदरी हो रही है, किसी जमाना में भी और दुनिया के किसी भी बाजार में कभी नहीं हुई। आज हमारी कोई कीमत नहीं रही, इसलिए कि तेरे दिल में अल्लाह के हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रही। दिल अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से खाली हो गए हैं। जिस जौहर की बदौलत वो गौहर था, वो ना रहा, ना इसमें वो सोज है, ना गदाज, ना तपश है, ना तड़प। यही वजह है कि अब ये कभी उनकी याद में नहीं रोया, इस आंखों से कभी फराक के आंसू नहीं बहे। ये ने रसूल तो मानता है, महबूब नहीं मानता। ये इसकी एक हालत है जिस पर दर गुजर मुमकिन है, लेकिन इस पर भी इसने इक्तफा नहीं किया। इस हद से बढ़कर आपकी शान पर नुक्ता चीन बना, और ये नुक्ता चीनी ही हमारी कम नसीबी का मूजब है। हमारी बेकदरी आपकी बेकदरी की बदौलत है। जब तक आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में जलवागर रही, आपकी मोहब्बत की बदौलत सारी दुनिया हमसे मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक पर रोब बख्शा हुआ था, जो अब हमें नहीं। आपका नाम क्यों हमारे विर्द ज़बान नहीं, खुद ब खुद क्यों नहीं दिल से निकल रहा। आपके जिक्र की बदौलत बज़्म हस्ती में रौनक थी, जब वो ना रहा रौनक ना रही। आपके जिक्र की बदौलत गफलत के पर्दे चाक होते हैं। सब दिल आप ही के फैज से फैज याब होकर फला पाते हैं, या हयो या कयूम। सारा दीन इस्लाम तेरे हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया, बतलाया, अमली नमूना देकर सखलाया हुआ है। फिर दीन इस्लाम की इस महफिल व मजालस में अगर दीन के बानी का चर्चा ना किया जाता तो और किसका किया जाता। उनके जिक्र के सिवा दीन की इस महफिल व मजालस में क्या रौनक होती, क्या ज़ौक़ होता, क्या सोज होता, क्या गदाद होता, क्या कैफ होता और क्या सरूर होता। उनकी मोहब्बत और मोहब्बत का बयान दीन से निकाल लिया जाए तो फिर दीन में क्या बाकी रहे। महज इबारत। अपने तबलीगी मरकज दारुल अहसान जिला फैसलाबाद से मेरे शाह कामल अरशाद फरमाते हैं कि बंदा गुनाहगार तेरे हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का मेदा उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का कफ्स बरदार है, फिर उनकी शान के बयान से क्यों कर बाज रह सकता है। हमारी ये मोहब्बत कबूल हो या ना हो, ये उनकी बात है। हमने इस मैदान में कांड नहीं देनी। ईद मिलाद या अगर हमने अल्लाह के मकबूल बंदों की याद में चंद मिनट बैठकर उनकी दीनी खिदमात का जो उन्होंने अल्लाह के लिए की जिक्र किया, फिर उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करने के लिए उनकी सीरत पर जिक्र किया, बताएं इससे दीन को क्या नुकसान पहुंचा। बेशक इससे दीन को बेहद तकवीत पहुंची जो किसी और तरीका से इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। तो फिर बंदा बंदे का इनकार कर सकता है? बंदे का इनकार तौबा तौबा कौन कर सकता है। कायनात की सारी दास्तानें बंदों ही की दास्तानों का मजमुआ है, और बंदा अल्लाह का खलीफा है। खलीफा बामंदले असल के होता है, फिर क्यों कर कोई बंदा किसी बंदे का इनकार कर सकता है। अगरचे हर शाय का खालिको मालिक राज़को हाफिजो वकीलो कफीलो नसीर अल्लाह है, फिर भी बंदा ही से बंदा पैदा होता है। बंदा ही बंदे को पालता है, बंदा ही बंदे को हर शाय बतलाता है, और बंदा ही बंदे को सिखलाता है। अगर बंदा ना होता तो कुछ भी ना होता, ना ये जमीन होती ना आसमान होता। बंदा ही के लिए कायनात मार्जे वजूद में आई, फिर क्यों कर कोई बंदा किसी बंदे का मुनकर हो सकता है। अल्लाह को अपने मकबूल बंदे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए बंदा उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए उनका जिक्र खैर किया करता है। बंदा ऐसे दीन को तकवीत पहुंचाने का एक अहम जरिया समझता है। उनका जिक्र दाफेउल बलियात
اور नजूल बरकत का मूजब होता है, फिर हम उनके जिक्र को क्यों कर फरामोश कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। हमारे इस कलीम में बहुत ही कम सहाबा कराम तशरीफ लाए। बर्रे आदम में सूफिया कराम ने ही दीन इस्लाम को फैलाया। मसलन हजरत सरकार फैज़ आलम दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सरकार बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। और दीन इस्लाम की तबलीग जो उन्होंने की वही सही, हर शक व शुबा से मुबर्रा है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने की वही मोतबर और काबिल तकलीद है। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे, महफिल समा भी किया करते थे, उर्स की महफिलें भी लगाया करते थे। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ममूर मन इल्लाह थे, वलायतुल हिंद के शाह और दीन इस्लाम का अमली नमूना थे। अगर ये बातें शिरको बिदअत होती आप कभी ना कहते। आपका नफ्स मज़क्की हर अलायस व खबासत से मत हरता। आपका कल्ब अल्लाह के नूर से मुनव्वर, अल्लाहुल हई की अनवार से जिंदा था। आपकी रूह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी महराज की हद तक पहुंची हुई थी। फिर आपके किसी कौल और किसी फेल में शिरक व बिदअत का कैसे गुमान हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। आप मकतबा इश्क के फारगुल तसील सारी दुनिया के लिए दीन इस्लाम का अमली नमूना थे। आन की आन में सारे हिंद को कुफर से निकाल कर दीन इस्लाम की तरफ ले आए। आपकी तबलीग में मोहब्बत जलवागर थी, जिसे भी चाहा नवाज लिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो इस बात पर शाहिद हो कि दीन इस्लाम किसी मकतब, दानिशगाह या किताबों से फैला हो। हर दौर में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती है कि दीन इस्लाम नजर कामल से फैला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ निगाहे कर्म उठाई दीन के आफताब को रोशन कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दुश्मन इस्लाम हल्का बेगोश इस्लाम हुए और जहन्नम के किनारे तक पहुंचकर जन्नतुल फिरदौस की तरफ लौट आए। सहाबा इकराम के जमाना में भी बगैर किसी दरसगाह के दीन की तबलीग की तकमील होती रही और उनके बाद ये फरीजा सूफिया अज़ाम जिनके दिल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर थे को अनायत हुआ। उनकी फैज याफ्ता निगाहों ने बेनियाम शमशीर से कहीं ज्यादा तेजी दखलाई और उनका वार कभी खाली ना गया। एक एक बोरिया नशीन ने बेशुमार इंसानों को राह रास्त दखलाई और गमराह कुन खितों की काया पलट कर रख दी। मसलन हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से पुरतसीर नजर लेकर निकले, अजमेर पहुंचे। किसी दरसगाह का इफ्तिताह नहीं किया, महज नजर से पूरे हिंदुस्तान में दीन इस्लाम को फैलाया और आदमजाद को गुमराही की तरीकियों से निकालकर सिरातुल मुस्तकीम पर चलाया। हजरत सैयदना गौसल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का चोर को कुतुब बनाना हमारी एक तरीकी मिसाल है। जब तक नजरे कामल की ताकत व तसीर पर हमारा इत्माद व यकीन रहा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में जलवा गर रही। सूफिया अज़ाम की इज्जत व एहतराम से मखमूर व सरसार रहे। हमारा परचम बुलंद तर होता गया, कभी सिर रगू ना हुआ, कोई उसे जेर ना कर सका। जब से उनकी मोहब्बत का खुमार उतर गया हम रफत में पड़ गए। जब तक हम अपनी खोई हुई मिरास यानी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से हासिल नहीं कर लेते, हमारी पहली इज्जत व तमकनत मुमकिन नहीं। अल्लाह तबारक ताला
अज़ो जल जुल जलाल वाल इकराम हम सब से दरगुजर फरमाए और हम सब को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत फिर से अनायत फरमाए।